बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम students. So this is the lecture number 1 on chapter number 18, atomic spectra, and in this lecture I am going to solve the problems on the energy and radius of the nth orbit of hydrogen atom. So these are the numericals which I am going to solve in this chapter. Almost 30 years VI के पास numericals. It contains energy, radius, binding energy, hydrogen spectrum, absorption spectrum, excitation and emission spectrum, de-excitation numerical, and the rest of ones are almost 23 numericals. Question number 22 is very difficult and 21 is almost same. Both contain excitation and de-excitation in a single numerical. So these are the problem which I am going to solve in this chapter. But in lecture number 1 I am going to solve problem number 1, 2 and 3. In problem number 1 we have different parameters of the hydrogen atom, that we have to calculate the electron in the ground state, the orbital radius, angular momentum of that electron in that shell, linear momentum, kinetic energy, potential energy, total energy. Okay. Okay, now let's discuss about the C formulae of the lecture number 1. So the angular momentum is equal to ln and h cut, where n is the principal quantum number, h cut जो है यहाँ पर ड्रैग कांस्टेंट होता है. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास होता है एन एच कट फॉर द हाइड्रोजन एटम बाय बोहर मॉडल. और एल एन का फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का एक ये भी होता है एम वी आर, वेयर एम वी इज़ द लीनियर मोमेंटम. सो यू कैन ऑल्सो राइट एल एन इज इक्वल टू पी आर, वेयर पी इज़ द लीनियर मोमेंटम, एल एल इज़ द एंगुलर मोमेंटम, and r is the radius of that orbit. For the radius we can write Rn is equal to n square h cut square k m e square, where h cut is the drag constant, k is the Coulomb constant, m is the mass of electron, e is the charge of electron, and n is the principal quantum number or shell number. So after placing all constants value, this formula will become Rn is equal to n square 0.53 exponent minus 10 meter. तो यहाँ पर रेडियस का फार्मूला है. ऊपर का फार्मूला जो है वो विदाउट वैल्यूज़ था, नीचे का फार्मूला जो है वैल्यूज़ रखने के बाद जो कैलकुलेट फार्मूला आता है आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एनर्जीज तो ड्यूरिंग मोशन इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल इट पजेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो फॉर द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर एन. सिमिलरली फॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वायर डिवाइड बाई आर एन, वेयर नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ नेगेटिव वर्क done by the electron moving away from the nucleus, and the total energy of the binding energy of that electron in that shell, which is the sum of kinetic and potential energy, is equal to minus k e square divided by 2 r n. तो इलेक्ट्रॉन की जो शेल में टोटल एनर्जी आती है जिसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं या शेल की एनर्जी कहते हैं, जो कि नेगेटिव होती है, बाउंड एनर्जी, उसका फॉर्मूला है के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आर एन. इस इक्वेशन को हम इससे भी मालूम कर सकते हैं, ई एन इज इक्वल टू के ई एन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एन. इसी फॉर्मूले से ये डेरिवेशन हुई है, वेयर एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34, एच कट इज द ड्रैग कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज 1.05 एक्सपोनेंट माइनस 34, मोर एक्यूरेट देन प्लांक्स कांस्टेंट, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, एंड के इज द कूलम कांस्टेंट्स. Okay, so these are the few formulae which I am going to use in this lecture. Okay, now let's move towards our first numerical, problem number 1. आपको इन सब की वर्कशीट जो है यूट्यूब के लिंक्स में अवेलेबल है. हर यूट्यूब के लिंक में चैप्टर्स की वर्कशीट, न्यूमेरिकल की वर्कशीट, फार्मूला शीट अवेलेबल है गूगल ड्राइव से.
आप लेक्चर की जो डिटेल्स होती हैं, डिस्क्रिप्शंस होती हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा. यू कैन गेट फ्रॉम देयर. सो द फर्स्ट फार्मूला इज एनर्जी and radius of the nth orbit of hydrogen atom. Problem number 1. Calculate the following orbital radius, angular momentum, linear momentum, kinetic energy, potential energy, total energy for the Bohr hydrogen atom in the ground state. एक हमारे पास हाइड्रोजन एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में, ग्राउंड स्टेट में है. आप देख सकते हैं ये पहले शेल में ऑर्बिटिंग कर रहा है, सेंटर में न्यूक्लियस है. तो इस सिनेरियो में आपको इनके ये पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं. इन द डेटा लेट इन ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1. ग्राउंड स्टेट का मतलब इसका क्वांटम नंबर क्या होगा, शेल नंबर 1 होगा, के शेल होगा. तो आपको रेडियस निकालना है यहाँ पे, तो रेडियस का r1 हो जाएगा. एंगुलर मोमेंटम L1, लीनियर मोमेंटम P1, पोटेंशियल एनर्जी PE1, काइनेटिक एनर्जी KE एट फॉर द शेल 1 एंड टोटल एनर्जी इज द E1. ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर वी हैव टू फाइंड आउट ओवर देयर. ओके. Okay, now in the solution of the problem number 1, for radius of the ground, for the first orbital radius r1, equation for the radius of the nth shell, rn is equal to n square h cut square divided by k me square, or we can also write this equation as follows: rn is equal to n square multiplied by 0.53 exponent minus 10 meter. So if for the ground state we can write n is equal to 1, so r1 is equal to 1 square h cut square k me square. By placing their values we get our radius of the first orbit of the hydrogen atom is 0.53 exponent minus 10 meter or 0.53 angstrom. Similarly for the angular momentum L1 के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है L is equal to n h cut. Okay. Now by placing n is equal to 1 and h cut is 1.05 exponent minus 34. तो n और h cut की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास जिसका एंगुलर मोमेंटम आएगा डेट इज़ 1.05 exponent minus 34 जूल सेकेंड. So this is the angular momentum and the radius for the first orbit or first shell of the hydrogen atom. Now solution is continued. For linear momentum P1, since we know that from the equation of P, L is equal to mvr, where mv is equal to P, so P is equal to, equate for P is equal to L upon R. By placing the values of L and R, we get our linear momentum 1.09 exponent minus 34 Newton meter. Similarly, for the kinetic energy, the equation of kinetic energy is k E square divided by 2Rn, where k is the Coulomb constant. By placing the values of all, k 9 exponent 9, E1 is the charge of electron, 1.6 exponent minus 19 Coulomb, and Rn is 0.53 because we have to find for the ground state or R1. तो Rn की जगह हम R1 की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हम काइनेटिक एनर्जी निकालना है फर्स्ट शेल की KE1. So you will get our kinetic energy is 2.17 exponent minus 18 joule. Okay, if we want to convert this equation into joule, from joule to electron volt, अगर हम इसे joule से electron volt में convert करना चाहते हैं तो हमें इसे दोबारा चार्ज से ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करना होगा, डेट इज़ 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19. तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए कैलकुलेशन को. इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड दिस वैल्यू बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो विल गेट our kinetic energy for the first orbit is 13.6 electron volt. Now solution is continued. So for the potential energy, we know that the potential energy for the nth shell PEN is equal to minus ke square divided by Rn. By placing the values of all constant, we get our potential energy is minus 4.35 exponent minus 18 joule, or in electron volt it will become minus 27.17 electron volt. So here negative sign is due to the bound energy, or the potential energy is always the negative work. इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने आप को न्यूक्लियस से दूर हटा रहा होता है, एक नेगेटिव वर्क परफॉर्म कर रहा होता है. दैट्स वाई हियर नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड.
Now for the total energy of the shell or the electron in that shell in first orbit is En is equal to k E square divided by 2Rn, or we can also get this equation by adding kinetic and potential energy according to their sign, with respect to their sign. So we get total energy by placing the values as minus 2.17 exponent minus 18 joule, and we have to convert this into electron volt. So divide this value by charge of electron, we will get minus 13.6 electron volt. Okay, so this is the end of this numerical number, problem number 1. Okay, now problem number 2. So a blood corpuscle has a diameter about 9 exponent minus 6 meter, in which excited orbit should a hydrogen atom be so that it is just about as the blood corpuscles. इस न्यूमेरिकल में कहा गया ब्लड कॉर्पस्क्यूल्स है, उसमें जो है एक हाइड्रोजन का एटम किस ऑर्बिट में उसके जो है एक्साइटेड हुआ है, यानी कि हमें इस ब्लड कॉर्पस्क्यूल को एक हाइड्रोजन एटम के मॉडल से कंपेयर करना होगा और बताना होगा कि उसमें ये डायमीटर है उसका, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ तक एक्साइट हुआ है, उसकी पोजीशन हमें बतानी होगी, उसका शेल नंबर बताना होगा कि वहाँ पे कितने शेल, अगर हाइड्रोजन एटम से कंपेयर करें उसको तो कितने शेल्स वहाँ पर ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो ये हमारे पास एक वो है ब्लड कॉर्पस्क्यूल, ये हमारे जो ब्लड में पार्टिकल्स होते हैं ब्लड्स में, ये इसका आंसर है 291 ऑर्बिट्स। सो है डेटा लेट टोटल ऑर्बिट्स n इज इक्वल टू फाइंड करना है हमें। डायमीटर इज 9 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर, सो कन्वर्टेड इनटू रेडियस इट विल बिकम 4.5 एक्सपोनेंट माइनस 6 मीटर। ये हमें Rn दिया हुआ है, किसी nth शेल तक का रेडियस गिवन है। Okay, now in the solution for n, since we know that the equation for the radius of nth shell Rn बराबर होता है n स्क्वायर h कट kme स्क्वायर, और Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 10 मीटर। Equate this equation for n, so it will become Rn divided by 0.53 exponent minus 10. By placing the value of Rn, we will get our n approximately 291 shell. तो यहाँ पे जो उसकी एक्साइटेड स्टेट आ रही है जहाँ पे वो मौजूद है, तो कितने शेल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, कौन से शेल में ऑक्यूपाई हो रहा है, वो 291 शेल में ऑक्यूपाई हो रहा है। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, ये कई मरतबा आ चुका है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इसके लिए फार्मूला आपको जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूज़ करना पड़ता है। एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का इन टर्म ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं, इन टर्म ऑफ ड्राग कांस्टेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर माइनस 13.6 आता है हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि पहले शेल में अगर हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में तो वहाँ पे उसकी जो टोटल एनर्जी आती है वो माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, लेकिन ये हमें उसको मैथमेटिकली प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाइड्रोजन एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले शेल में ऑर्बिटिंग कर रहा है बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से। सो इन द डेटा लेट बाइंडिंग एनर्जी और द फर्स्ट शेल और E1 इज इक्वल टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी आपको मालूम करनी है, जो कि नेगेटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। H इज़ 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये सब चीज़ें यहाँ गिवन है आपको डेटा में। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी गिवन है। ओके, नाउ लेट्स कम टुवर्ड इट्स सॉल्यूशन। So in the solution for binding energy, since we know that the equation for the energy of first shell or nth shell, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, या E1 या En का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस me⁴ डिवाइड बाई n स्क्वायर इंटू 8 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये फार्मूला भी वैसे ही है जैसे हमने En लिखा था, En इज इक्वल टू के ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2Rn, बस हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, रेडियस की भी वैल्यू रख दी है, तो इक्वेशन कुछ इस तरह की बन जाती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस फार्मूले से कर लें या दूसरे वाले फार्मूले से कर लें। आंसर इसका माइनस 13.6 ही आएगा।
सो बाय प्लेसिंग दी वैल्यूज़, बिकॉज ये सारा डेटा हमें गिवन था, हमने इसलिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है. बाय प्लेसिंग ऑल वैल्यूज़ यू विल गेट its energy in the first orbit or the ground state is minus 2.17 x per minus 18 joule. Now convert this value into electron volt, dividing by the charge of electron, you will get binding energy of an hydrogen atom or electron in the first shell is minus 13.6 electron volt. ओके क्लास, तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 यहाँ पर एंड हो जाता है. और इसके न्यूमेरिकल की वर्कशीट सारी जो है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, हर चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में, हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं. आपको जिस चैप्टर की भी न्यूमेरिकल शीट रिक्वायर्ड हो वहाँ से आप उसको ओपन करके फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल ड्राइव के ज़रिए. तो यहाँ पे दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.